Hello everyone, welcome once again to India Sports News for yet another episode of Beyond the Boundaries, where we are looking at World Cup heroes from different editions of Cricket World Cups that have been played till now. Today, I have with me once again my good friend Devendra Prabhudesai. Devendra, thanks a lot. Today, we are going back to the start of the Cricket World Cup journey back in 1975 when it all started. Was it originally meant to be a Cricket World Cup? Was it called a Cricket World Cup or did it have some other name? How did it all start? Cricket World Cup, the men's Cricket World Cup was an outcome of a lot of attempts to get the test playing nations together. I think it all began in 1971 when the first ever ODI, One Day International, was played between Australia and England. And there were some attempts made by different cricket boards to get Australia, England, New Zealand together. There was a talk of a combined team playing the number one test team, but nothing really came to fruition. And I think what happened in 1973 is that the women ended up having their first Cricket World Cup. So the women were ahead of the men, and that probably spurred the ICC on to come up with its own version of the World Cup in 1975. Why England? Why was England chosen as the winner? Again, the hub of the sport, then the mother country, as all the erstwhile members of the British Empire called it. Great conditions, the great infrastructure, long days, the English summer. So that was the reason England was chosen. And for India, I think they played two one-days on the 74 tour of England. Yes. That was the first experience for them. We hadn't started with any kind of domestic one-day competition in India. We did. The Devdhar Trophy was started in the early 70s. So it was India's first ever limited overs competition. But it was more of a novelty than anything else. Indians were like born and bred on the traditional multi-day version. So they looked at one-day cricket, I wouldn't say suspiciously, but very in a very uncertain manner. That what do we make of this? And I don't think the Indians particularly were taking it all that seriously. They felt, okay, this is an event, it's a World Cup, let's go and give it our best shot. Also, I think what went against India is that not many Indians at that stage were playing county cricket. In England, the first ever limited overs one-day competition was started way back in 1963. It was called the Gillette Cup. And when it came to the other countries, Australia, England, Australia also had a limited overs competition by then. A lot of Pakistani cricketers were playing county cricket. A lot more Pakistani cricketers than Indian cricketers were playing county cricket. So when you are part of a county team and when you are part of that English season, there was a lot of one-day cricket there. So India had players like Bishan Singh Bedi and Srinivas Venkataraghavan, who in fact was appointed captain of India because he had more experience of limited overs cricket in England than the others, because he played for Derbyshire in the English County Championship. So Indians were not really. And Farooq Engineer? Farooq Engineer as well, but Srinivas Venkataraghavan, because he had been vice captain on a few tours prior to that, he was given the captaincy. And all the retirements had happened by then. A year before the World Cup, Ajit Wadekar retired. Then Mansoor Ali Khan Pataudi came back for the West Indies series. He also finished up with his cricket. Farooq Engineer played his last test match in that India-West Indies series, 74-75. So this was practically his last hurrah in that sense, absolutely. the 75 World Cup. Now, heading into the World Cup, did India actually believe they have any kind of chance? I don't think so. They just looked at it as a kind of a novelty, a 2-week tour where you have to just give it your best, make the most of whatever is offered to you. And I think everyone was just waiting with bated breath to see what was going to transpire in the next 2 weeks. But I don't think the Indians had any serious thought about winning the World Cup. They may have fancied their chances of making it to the semi-finals because they were drawn with the hosts England, New Zealand and East Africa. So East Africa, there's no nation like East Africa. It was basically a combination of cricketers from Kenya, Tanzania and Uganda, I think. So the Indians would have probably thought, if we beat East Africa and New Zealand, then we have a chance of getting into the semis. But apart from that, I don't think they really took it very seriously. And the other group,
what was the other group like, if you can tell us? So West Indies, Australia, Pakistan and Sri Lanka. So Sri Lanka at that time was not a full member of the ICC. So Sri Lanka qualified for the World Cup by winning the ICC trophy, which the associate member nations play for. In those days, it used to happen 1 year before the World Cup. And that was a very competitive group because obviously the West Indies, most of them played county cricket. They had this natural ability, the natural flair for limited overs cricket where you had to play big shots, bowl quick. Now, Pakistan, a lot of their players, as I said, played county cricket. So they were used to limited overs cricket. Sri Lanka also had some natural attacking players. So I think that other group witnessed a lot more competitive action. And the tournament started. The first ball of World Cup history was bowled by Mr. Madan Lal. Yes. And I think the first day had 3 matches? 4 matches. 4 matches. You can't even imagine that. So that template was followed right through the first 3 World Cups. Even in 75, 79, 83, you always had 4 matches per day. So all the teams were engaged simultaneously. So no off day for anybody. As in, like, if somebody's playing, there's no way of finding out what's happening. Yes. You can't keep a track of it. Unless somebody is listening to the radio commentary. Yeah. So the first ball was bowled by Madan Lal, and India got off to the worst possible start in the tournament with a defeat to England, didn't it? Yes. So England scored 334, I think, with Dennis Amiss scoring a century. And then India just struggled in the 60 overs, finished at 132 for 3. There was a lot of criticism for the innings that Sunil Gavaskar played. 36 not out. He batted through the innings. And later on, of course, he said that it was one of his worst days as an international cricketer. And it was, again, my reasoning is that he and the other, his contemporaries, they were so attuned to that challenge of making the bowler earn your wicket and not throwing your wicket away, offering a straight bat, that they found that transition very difficult, where limited overs cricket, you have to take some calculated risks. But that was just, they found it difficult at that particular time. And England, obviously, because they have wealth of experience, they obviously stood a good chance in that particular tournament. What about India's other engagements in that particular? So the same Sunil Gavaskar in the very next match against East Africa scored an unbeaten 50. Farooq Engineer scored 50 odd, and we won that match by 10 wickets. So it was also the first ever 10 wicket victory in a one-day international. And Bishan Singh Bedi came up with an extraordinary bowling analysis as well in that game. So obviously we expected to beat East Africa, but I think that victory would have sort of boosted the morale of the Indians. And they went into the game against New Zealand with a winning mindset. But then New Zealand had someone called Glenn Turner, who had played a lot of cricket in England. So he was well acquainted with the conditions. He scored a century and the Indians were just shut out of the match. The other group, like you mentioned, was far more competitive. And I remember particularly one game between West Indies and Pakistan. If Pakistan had closed out that game, would the history of Cricket World Cups have been completely different? Yeah, you never know because, they should have closed out the game. Imagine the West Indies needing 64 more to win and the last pair is at the wicket. Who would have given them a chance? But somehow, Andy Roberts and Derek Murray, they pulled that victory out of nowhere. Imagine adding 64 runs for the last wicket. And Pakistan, I guess they celebrated too soon. Asif Iqbal, who was leading Pakistan in that match, I think he took a calculated gamble by bowling his best bowlers out in a bid to take that last wicket, but that didn't work. So ultimately he was left with people like Wasim Raja to bowl the final few overs, and the West Indies ended up winning. And there's a very interesting story. You had a former English cricketer called Tom Graveney, who was the man of the match adjudicator. And he disappeared when the West Indies lost their 8th or 9th wicket. And he emerged at the end of the match. And he declared that Sarfaraz Nawaz of Pakistan, who had taken 4 wickets, 4 West Indies wickets, he was the man of the match. And everybody clapped because obviously Sarfaraz Nawaz had done well as a bowler. He deserved the award. And then Graveney went on to say that my choice for the man of the match is Sarfaraz because it is customary to give the award to a member of the winning team.
And there was pin drop silence because people realized that this guy hasn't even watched the end of the game. He doesn't know that the West Indies actually won that match. These are some amazing stories which you will hear only right here on India Sports News. पर और एक मुकाबला था श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, और उस मुकाबले में काफ़ी खिलाड़ी, मैंने तस्वीर अभी भी मेरे जहन में है कि वो श्रीलंकाई खिलाड़ी मतलब ज़मीन पर फ्लैट हो गए थे जेफ थॉम्सन के खिलाफ. तो जेफ थॉम्सन वाज इन दैट मूड. वो ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं दिखा दूंगा. श्रीलंका वाज बैटिंग वेरी वेल, तो उन्होंने बाउंसर्स डाले. एंड दोज डेज देयर वर नो हेलमेट्स, नो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ही वाज जस्ट टू हॉट टू हैंडल. और उसके कुछ चंद महीने पहले जेफ थॉम्सन ने इंग्लैंड के सारे बैट्समैन को वही किया था, वही हाल किया था. एंड दैट इज व्हाट ही डिड टू द श्रीलंकन्स. वो पूरी तरह से, मतलब मैं तस्वीरें देखकर मतलब डर लगता है, मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट दोस फोटोज यू फील स्कैर्ड. Yes, absolutely. Thomo was a terror. I think he was bowling faster than the speed of light. Absolutely. So I think you can imagine well how it must have been. But then we had the four semi-finalists: England, Australia, I think West Indies, New Zealand. So the England-Australia match. What was going on in that match? It was a crazy contest. Yeah, so Headingley Leeds has this tradition which the wicket has something in it for the bowlers. It is overcast. So it was one of those days. हर एक क्रिकेटर की करियर में एक दिन आता है जब वो दिन उस क्रिकेटर का होता है. He can do no wrong. तो गैरी गिल्मर करके एक लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में. So he could do no wrong. उन्होंने 6 विकेटें ली for only 14 runs and England were all out for 93. सबको लगा सिर्फ 94 करने हैं, 60 ओवर्स. वो वर्ल्ड कप जो था वो 60 ओवर्स साइड का वर्ल्ड कप था, बिकॉज द डेज आर लॉन्ग इन इंग्लैंड. तो सबने सोचा ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीतेगी. बट अभी अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स उन कंडीशंस को इस तरह यूज़ कर सकते थे अपने फेवर में, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के बॉलर्स तो खुद के बैकयार्ड के कंडीशंस ज़्यादा अच्छे समझते थे. सो सडनली इंग्लैंड हिट बैक एंड ऑस्ट्रेलिया वर 39 for 6. 94 needed to win, 39 for 6. तो कहना पड़ा लोगों को कि अभी इंग्लैंड का पल्ला भारी है. बट अगेन गेस हु कम्स इनटू द विकेट? द सेम गैरी गिल्मर, एंड ही गोज ऑन टू बैट वेल एंड टेक ऑस्ट्रेलिया टू विक्ट्री. सो दैट वाज हिज डे. I still remember that photo of Rodney Marsh. Oh yes, acrobatic catch parallel to the ground. Absolutely brilliant, absolutely brilliant. तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा, इंग्लैंड बाहर हो गया. दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को रौंदा और वो भी फाइनल में पहुंचे. अब फाइनल जो है मतलब साल का सबसे लंबा दिन, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, जून 21, 1975, इस दिन को फाइनल हुआ. और शुरुआत में रॉय फ्रेडरिक्स बहुत ज़्यादा जल्दी में थे. तो रॉय फ्रेडरिक्स ने डेनिस लिली को छक्का मारा, लेकिन छक्का मारते हुए वो जो उनके जो जूते थे, दोज वर रबर सोल्ड शूज, he lost his balance and he fell onto his wicket. So although the ball went for 6, he was out hit wicket. And the West Indies did not really get off to a very good start. But then उनके जो कैप्टन थे क्लाइव लॉयड, वो आए और उन्होंने अपना जो सुपर हेवी बल्ला था, it was said that Clive Lloyd uses the heaviest bat in cricket at that point of time. तो उस बल्ले का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया और सेंचुरी बनाई वर्ल्ड कप फाइनल में. और रोहन कन्हाई और वेटरन ऑफ द वेस्ट इंडीज, जो उस वक्त 40 साल के हो चुके थे, ही वॉज प्लेइंग हिज लास्ट सीरीज. तो रोहन कन्हाई ने क्लाइव लॉयड का साथ दिया एंड द वेस्ट इंडीज वेंट ऑन टू स्कोर 291. इट वॉज अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्कोर. आप कहेंगे 60 ओवर्स की मैच थी, तो स्टिल 292 का टारगेट, इट इज़ लेस देन 6 रन एन ओवर. बट रिमेंबर, ये 1975 की बात कर रहे हैं हम. ये सारे जो रूल्स आज हमें देखने को मिलते हैं कि फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, वो कुछ नहीं था. अगर कैप्टन चाहते, फील्डिंग कैप्टन चाहते, तो वो 9 के 9 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रख सकते थे. कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. सो गिवन ऑल दैट, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बाउंसर्स, सो इट वॉज अ ग्रेट स्कोर, 291. और जवाब में जब शुरू हुआ तो काफ़ी बार ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया गेम में नहीं है. पर मेरे ख्याल से जो काम एक नौजवान था, आपने शायद नाम सुना होगा उनका, आइजैक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स, बल्ले से नहीं फील्ड पे कमाल किया उन्होंने.
और उसके बाद ऐसा लग रहा था मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीत ही लिया है, फिर एंड में मतलब ऐसा मैंने पागलपन कभी नहीं देखा है। और ये शायद लॉर्ड्स की खासियत है, 2019 के फाइनल में भी हमने देखा और 75 के फाइनल में भी देखा, 83 में भी हमने देखा, अजीबोगरीब चीज। लॉर्ड्स का मतलब खासियत है कि कुछ अजीबोगरीब चीज होते हैं वहां पे फाइनल में। तो आई थिंक फाइनल थी तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट वांट टू गिव अप विदाउट अ फाइट, तो उनकी जो लास्ट पेयर है डेनिस लिली एंड जेफ थॉम्सन, उन्होंने बिल्कुल वही किया या करने की कोशिश की जो वेस्ट इंडीज की लास्ट पेयर डेरेक मरे और एंडी रॉबर्ट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। सो डेनिस लिली एंड जेफ थॉम्सन बैटेड एंड they took their team closer and closer to the target. वेस्ट इंडीज के सारे सपोर्टर्स बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, वो उस आखिरी विकेट का इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरी विकेट गिरे और कब हम सब मैदान पे दौड़े। उस जमाने में ये सिक्योरिटी वगैरह कुछ था नहीं, सो एवरी टाइम अ मैच एंडेड there used to be a raid of the ground by the spectators. So everybody was getting restless कि यार ये दोनों आउट क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में अरे और एक रन और and they had a lot of time. So Dennis Lillee and Jeff Thomson they were stroking the ball around. फिर एक इंसिडेंट हुआ कि नो बॉल डाला बॉलर ने एंड जेफ थॉम्सन गेव अ कैच, तो जो स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने अंपायर का हाथ नहीं देखा सिग्नलिंग नो बॉल, उन्होंने कैच पकड़ते हुए देखा फील्डर को, तो उनको लगा मैच खत्म हो गई है। सो दे ऑल केम रनिंग ऑन टू द विकेट। जो फील्डर था जिसने कैच लिया था उसको भी पता चला कि यार ये तो नॉट आउट है, नो बॉल है। तब तक लिली और थॉम्सन रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके थे, तो उस फील्डर ने बॉल को फेंका टू रन द बैट्समैन आउट, लेकिन वो बॉल लगा नहीं स्टंप को और वो बॉल कहीं खो गया अमिट्स द स्पेक्टेटर्स हु वर रनिंग इन, एंड लिली एंड थॉम्सन केप्ट रनिंग। उन्होंने कुछ 3, 4, 5 रन ऐसे दौड़ के लिए, फिर पूरा ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड, पुलिस आई, सारे स्पेक्टेटर्स को वापस भेज दिया गया। दिस इज अनथिंकेबल टुडे, ये आज नहीं हो सकता। अगर हुआ तो द टीम्स विल कंप्लेन अबाउट पुअर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तक तो यही हो रहा था, आई थिंक 99 में भी यही हो रहा था। तो फिर अंपायर्स ने सोचा कि यार अभी क्या करें, तो अंपायर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन्स अवार्ड किए। तो लिली और थॉम्सन बहुत दे वर वेरी एंग्री कि हम इतना दौड़ रहे हैं और आप हमें सिर्फ 3 रन दे रहे हो। तो अंपायर्स ने कहा नहीं, आवर डिसीजन इज फाइनल। तो ऐसे ये चलता रहा एंड देन फाइनली विद आई थिंक 17 और 18 रन्स नीडेड टू विन, जेफ थॉम्सन हैड अ ब्रेन फेड। उस वक्त ये ब्रेन फेड टर्म नहीं थी, बट ही हैड अ ब्रेन फेड और ही प्लेड एंड मिस्ड एंड वो बॉल चला गया विकेट कीपर के पास और पता नहीं क्यों जेफ थॉम्सन आगे निकल गए। लिली ने उन्हें वापस भेजा, बट तब तक विकेट कीपर डेरेक मरे का थ्रो स्टंप को लग चुका था। दैट वाज द 5th रन आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स एंड द वेस्ट इंडीज वर द फर्स्ट विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप बाय 17 और 18 रन्स। कप्तान क्लाइव लॉयड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करीबन 1 साल पहले ही उन्होंने वेस्ट इंडीज की कप्तानी संभाली थी और उसके बाद उनसे मतलब उन्होंने इंडिया में आके सीरीज जीता, फिर ये वर्ल्ड कप जीता, तो उनका तो जो कद था काफ़ी वैसे ही लंबे चौड़े थे और भी लंबा हो गया। परफेक्ट। I mean, Clive Lloyd, great cricketer. He was appointed captain of a West Indies team that was in a transition phase. क्योंकि 1974 में जब उन्हें कैप्टन बना दिया गया तो काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी जैसे गैरी सोबर्स रिटायर हो चुके थे, रोहन कनाई रिटायर होने के पॉइंट पे थे। रोहन कनाई ने वर्ल्ड कप खेला लेकिन वो इंडिया के टूर पे नहीं आए थे। सो एंड वेस्ली हॉल कुछ साल पहले रिटायर हो चुके थे। सो वन कंप्लीट जनरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज लेजेंड्स had retired and they all looked up to Clive Lloyd to give the team direction, and of course what he went on to do was historic. और उसके बाद उस वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट में जो हुआ वो भी हिस्टोरिक ही था। मतलब कप्तान बदल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मतलब अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। तब वेंकट राघवन को कप्तानी से हटा दिया गया और बिशन बेदी को कप्तान बनाया गया। तो करीबन 2-2.5 साल बिशन बेदी कप्तान थे। फिर पाकिस्तान के दौरे पर जैसे होता है हमेशा, पाकिस्तान के दौरे पर हार के बाद बिशन बेदी को हटा दिया गया, गावस्कर को कप्तान बनाया गया और उसके बाद एक इंग्लैंड का दौरा होना था विद द वर्ल्ड कप इन 1979। तब गावस्कर को हटाकर फिर एक बार वेंकट राघवन को बनाया गया और सैयद किरमानी जो तब तक नंबर 1 विकेट कीपर हो गए थे भारत के, उनको भी हटा दिया गया था। कहानी क्या है, ये दोनों खिलाड़ी के साथ ऐसा क्यों किया गया? हुआ ये कि 1975 वर्ल्ड कप के कुछ 1.5 साल बाद एक बड़ा तूफान आया क्रिकेट में। आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी
तब उस वक्त कंट्रोवर्सी थी, लेकिन आज जब हम देखते हैं आई थिंक इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू क्रिकेट। कैरी पैकर करके एक ऑस्ट्रेलिया के मीडिया टाइकून थे, तो उन्होंने एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया, पैरेलल वर्ल्ड बॉडी बनाई, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, और उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स को 50-60 सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स को साइन अप किया, और वो क्रिकेटर्स मैचेस खेलने लगे विच डायरेक्टली क्लैश्ड विद द ट्रेडिशनल टेस्ट मैचेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईसीसी। और शुरू में लगा कि यार ये ज़्यादा नहीं चलेगा, बट कैरी पैकर व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही वाज गिविंग द क्रिकेटर्स व्हाट दे डिजर्व्ड। फॉर इयर्स क्रिकेटर्स हैड बीन ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द आईसीसी एंड इट्स मेंबर बोर्ड्स, दे वर अंडरपेड, तो क्रिकेटर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड व्हेन कैरी पैकर केम ऑन टू द सीन ही टोल्ड देम, लुक आई विल पे यू व्हाट यू डिजर्व एंड यू हैव टू प्ले फॉर माई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। दैट वाज अ बिग रेवोल्यूशन। और दो साल बाद आईसीसी और जो सारे मेंबर बोर्ड्स थे उनको ये पता चला कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज क्रिकेटर्स वर गेटिंग गुड मनी, टेलीविजन कवरेज बहुत अच्छा हो चुका था, काफ़ी इनोवेशंस कैरी पैकर ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि नाइट क्रिकेट, कलर्ड क्लोथिंग, वाइट बॉल्स। सो पूरा क्रिकेट का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया था। सो एक सेटलमेंट किया गया कैरी पैकर और जो एस्टैब्लिशमेंट था, यानी कि आईसीसी और उसके मेंबर बोर्ड्स में। एंड कैरी पैकर ने फिर कहा कि ठीक है, मैं मेरी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बंद कर देता हूं, मुझे ऑस्ट्रेलिया के सारे क्रिकेट के टेलीकास्ट राइट चाहिए 5 साल के लिए। तो वो राइट्स उन्हें दे दिए गए, एंड देयर आफ्टर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट डिड नॉट एग्जिस्ट, बट द गेम ऑफ क्रिकेट हैड चेंज्ड फॉरएवर। इंडिया में क्या हुआ कि इनिशियली कैरी पैकर ने इंडियन क्रिकेटर्स को साइन नहीं किया था, लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ थी कि कैरी पैकर का जो तीसरा सीजन होगा वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का, उसमें वो शायद सुनील गावस्कर और सैयद किरमानी को साइन कर सकते हैं। एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट बोथ गावस्कर एंड किरमानी वर कंसिडरिंग ऑफर्स फ्रॉम कैरी पैकर आफ्टर, लेकिन ऑब्वियसली वो तीसरा सीजन हुआ ही नहीं, क्योंकि तब तक कैरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बंद कर दिया था। लेकिन बीसीसीआई उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव स्टैंड लिया कि नहीं, ये जो क्रिकेट है कैरी पैकर का, इट इज़ नॉट कन्वेंशनल क्रिकेट, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द आईसीसी। तो जिन प्लेयर्स को अप्रोच किया गया है और जो ये ऑफर्स कंसिडर कर रहे थे, उन्हें हमें सबक सिखाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि 1979 वर्ल्ड कप के लिए जो इंडियन टीम इंग्लैंड जाने वाली थी, इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी, और फिर 1979 वर्ल्ड कप भी था, तो उस टीम से उन्होंने सैयद किरमानी को निकाल दिया। नंबर 1 विकेट कीपर, एज यू सेड, वाज ड्रॉप्ड। Sunil Gavaskar could not be touched because he was the foremost batsman in the Indian team at the time. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, उसकी कैप्टनसी छीन लेते हैं हम। तो इसीलिए फिर गावस्कर कंटिन्यू टू बी इन द टीम, बट Srinivas Venkataraghvan, who had led India in the 1975 World Cup, was brought back as captain. और इस वर्ल्ड कप में क्या भारत का प्रदर्शन पहले से बेहतर था? क्योंकि 4 साल हो गए थे, अब आप ये नहीं बोल सकते थे कि हमें पता नहीं है वनडे क्रिकेट के बारे में। 4 साल में काफ़ी कुछ हुआ था भारत के क्रिकेट में। आप पाकिस्तान में जाके वनडे क्रिकेट में भी आपने उनको टक्कर दिया, जो दिग्गज पाकिस्तानी टीम थी। तो क्या बदला था भारत के लिए वर्ल्ड कप के हिसाब से 79 के वर्ल्ड कप? मेरे ख्याल से बहुत ही डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस था इंडियन टीम का, क्योंकि हम हमारे सारे मैचेस हार गए। वेस्ट इंडीज़ ने हमें हराया, न्यूजीलैंड ने हमें हराया, और सबसे बुरी बात यह थी कि श्रीलंका, जो उस वक्त भी एक एसोसिएट मेंबर थी आईसीसी की, दैट स्टिल नॉट गॉट फुल मेंबरशिप ऑफ द आईसीसी, श्रीलंका ने भी हमें हराया। सो इट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। कुछ अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थे, सुनील गावस्कर स्कोर्ड 150, गुंडप्पा विश्वनाथ बैटेड वेरी वेल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, बट ये सब छोड़ के आई थिंक इट वाज क्वाइट अ डिजास्ट्रस कैंपेन। और वेस्ट इंडीज एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में था, और इस बार तो और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उनके पास और भी खतरनाक गेंदबाज आ गए थे इस टूर्नामेंट में। और कप्तानी तो क्लाइव लॉयड की बिल्कुल बढ़िया थी। बीच में वो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में कप्तानी करने गए थे और खेलने भी गए थे। काफ़ी जो उनके खिलाड़ी थे वो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में भी थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टीम वॉज फ्रॉम वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। तो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ने क्या किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को बहुत ही एक प्रोफेशनल आउटलुक दिया। आई थिंक द वेस्ट इंडीज टीम वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एंगेज अ फुल टाइम ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर। 70s में ये एक बहुत ही नॉवेल बात थी। तो वेस्ट इंडीज वर ऑलवेज सुपीरियर in terms of batting, bowling and fielding and fitness. They set the standards which other teams struggled to follow. So they were on a roll, and tab tak Vivian Richards had matured.
Gordon Greenidge had also matured, so they had some absolute legends in the team. और डेस्मंड हेन्स भी आ गए थे। डेस्मंड हेन्स भी आ गए थे, तो एक सारे बड़े प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज की टीम में, एंड दे प्लेड अ लॉट ऑफ काउंटी क्रिकेट। कैरी पैकर का जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट था, दैट वाज बेसिकली वनडे क्रिकेट, सो दे वर एक्सपीरियंस्ड इन वनडे क्रिकेट। एक बहुत ही अजीब बात ये थी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया 1979 वर्ल्ड कप में जो कैरी पैकर के वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के का हिस्सा थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक नई टीम भेजी। ऑस्ट्रेलिया ने एक भी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए जिसने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेला था, ऑल्दो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट हैड बीन डिसबैंडेड बाय देम। तो ग्रेग चैपल, इयन चैपल, डेनिस लिली, रॉडनी मार्श, जो दिग्गज ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे उस वक्त के, हु हैड प्लेड वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बट वर नाउ अवेलेबल टू प्ले फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑस्ट्रेलियन टीम, द ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन टीम, फॉर सम रीजन दे वर नॉट पिक्ड इन दैट वर्ल्ड कप स्क्वाड। एंड मैं आप सबको बता दूं, बारबी का डंका अब बज रहा है, पर वेस्ट इंडीज की वो टीम जो थी वो पिंक पेन का डंका बजा रही थी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में। पिंक पहनी थी उन्होंने, yes. और उसके बाद मरून में गए, फिर काफी कुछ बदला है उनके क्रिकेट में और बहुत कुछ बदल गया है। तो हमने बात की कि भारत जो है श्रीलंका से हारा, वेस्ट इंडीज एक बार फिर आगे बढ़ता गया दूसरे ग्रुप में, पर इस बार आपने जैसे कहा ऑस्ट्रेलिया उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। दिस टाइम it was the turn of England to move ahead yes. in the competition, and they played New Zealand in the semi-final, and West Indies played Pakistan yes. in the semi-final, and they were to play Pakistan again in the 83 semi-final as well. How do you look back at these two semi-finals? I think both games were good. England-New Zealand was a thriller, and England found an unlikely bowling hero in Jeffrey Boycott, जो अपने बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ही मेड अ रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ इन दैट वर्ल्ड कप, बॉलिंग अ फ्यू ओवर्स। अपनी कैप वो उल्टी पहनते थे कैप, और वो 2-3 ओवर्स, कुछ थोड़े बहुत ओवर्स डालते थे, 2-3 विकेट्स ले लेते थे, सो ही हैड बिकम अ यूजफुल चेंज बॉलर। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जो सेमीफाइनल था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। एट वन स्टेज यू फेल्ट दैट पाकिस्तान वर वेरी वेल प्लेस्ड टू चेस डाउन द टारगेट दैट द वेस्ट इंडीज हैड सेट, लेकिन फिर क्लाइव लॉयड ने अपने टीम को जमा किया, एंड दे जस्ट टाइटन द स्क्रूज, दे मेंटेन्ड द लेग स्टंप लाइन, द bowlers bowled to the field, and the Pakistani batsmen just found it very hard, the going very hard, and that is how the West Indies qualified for the final. और फाइनल के दिन जबरदस्त मतलब बिल्डअप हुआ, सबको लग रहा था कि इंग्लैंड इस वेस्ट इंडीज टीम को हरा देगी, क्योंकि माइक ब्रियरली थे एक तरफ कप्तान, दूसरी तरफ क्लाइव लॉयड, और इस इंग्लिश टीम से काफ़ी उम्मीदें थी जब वो मैदान में उतरे उस दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उम्मीदें तो थी, they were very happy when Gordon Greenidge fell early, because Gordon Greenidge had scored a lot of runs in that World Cup. But then they ran into Isaac Vivian Alexander Richards, जिसने पहली वर्ल्ड कप फाइनल जो 1975 में खेली गई थी, he had excelled as a fielder. अब उन्होंने सोचा कि अब ये मैच में, ये वर्ल्ड कप फाइनल में मैं बैट के साथ कुछ दिखाता हूँ, एंड ही फाउंड एन अलाई इन द फॉर्म ऑफ कॉलिस किंग, एंड उन्होंने जो बैटिंग की, Vivian Richards made 100, Collis King made 80, and they just took the match away from England. और जिस तरह से वो जो मेरे ख्याल से वो छठा गेंदबाज, वो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम साबित हुआ। Ultimately, I think Jeffrey Boycott's luck ran out with the ball. बाद में पता चला कि his luck with the bat also ran out, but Vivian Richards और Collis King, वो जब Richards जैसा बैट्समैन एक अग्रेसिव मूड में होता है, तो there is nothing much the bowling team can do except for prey, except prey. और जब इंग्लैंड ने चेस शुरू किया, माइक ब्रियरली और जेफरी बॉयकॉट, ऐसा लग रहा था पता नहीं, मतलब वो 60 ओवर नहीं 120 ओवर बाकी है। हाँ, तो आई थिंक माइक ब्रेयरली और बॉयकॉट, आई थिंक द ओपनिंग पेयर में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बिकॉज बोथ जेफरी बॉयकॉट एंड माइक ब्रेयरली, दे वर वेरी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव प्लेयर्स, डिफेंसिव प्लेयर्स। अगर वो ग्राहम गूच को ओपनिंग के लिए भेजते, ग्राहम गूच वॉज अ नेचुरली अटैकिंग प्लेयर, तो अगर गूच और बॉयकॉट फॉर एग्जांपल एक साथ ओपन करते तो शायद एक अटैक और डिफेंस का कॉम्बिनेशन मिल जाता, बट फॉर सम रीजन ब्रियरली एंड बॉयकॉट ओपनड चेजिंग 287, एंड दे वर टेकिंग देयर ओन टाइम। और एक ऐसा उसमें मोमेंट भी था कि बॉयकॉट ने एक बॉल मारा अपिशली, और क्लाइव लॉयड के पास वो कैच गया, एंड इट वाज अ डिफिकल्ट कैच, बट क्लाइव लॉयड वाज अ ग्रेट फील्डर, ही शुड हैव टेकन दैट कैच, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद वो बॉल नीचे गिर गया। बाद में कहा जाता है कि
किसी ने कहा कि क्लाइव लॉयड ने जानबूझ के वो कैच ड्रॉप किया बिकॉज ही वांटेड बॉयकॉट टू कंटिन्यू बैटिंग, बिकॉज बॉयकॉट जिस तरह बैटिंग कर रहे थे ही वाज टेकिंग हिज ओन टाइम। और वैसे ही हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ कि जब ये पार्टनरशिप उनकी सेपरेट हुई आफ्टर अ सेंचुरी स्टैंड, तो बाकी के जो बैट्समैन थे, ग्राहम गूज, डेविड गावर, इयन बोथम, उनके लिए आस्किंग रेट बहुत बड़ा हो गया एंड दे जस्ट सकम्ड टू द प्रेशर। और अंत में जो चैंपियन बने वेस्ट इंडीज, दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज, और this time they were even stronger. Like I mentioned earlier, the captain was much more experienced. I think the core of the team was much more experienced compared to what it was in 75. The 79 team was better than the 75 team. Yes, without a doubt. And the 83 more experienced also. More experienced. And the 83 team, it was better than the 79 team. 79 team. So imagine. And so in a way, I don't know if Kapil Dev paid notice to the 75 and 79 finals, because the first two World Cups, West Indies won by batting first. I think by default, I think that India batted first and put pressure on the... 83, Clive Lloyd won the toss and elected to field because the wicket had something in it for the bowlers. So he wanted his fast bowlers to have a go. And he was proved right because they bowled India out for 183. So in a way, his decision was right. तो वेस्ट इंडीज का जो बोलबाला था 75, 79 और कुछ हद तक 83 में फाइनल तक की बात कर ले, ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कोई छू नहीं सकता। और उसके बाद एक डाउनवर्ड कर्व आया वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में, और ऐसा सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अगर वापस एक बार खड़ा करना है तो आपको वेस्ट इंडीज में एक बड़ा टूर्नामेंट करना है। और इसीलिए आई थिंक करीबन 2002 के आसपास ये तय किया गया कि 2007 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। बड़े गाजे बाजे के साथ उसका अनाउंसमेंट हुआ। 2003 के वर्ल्ड कप में ही पार्टी शुरू हो गई थी उसकी। और कहानियां आ रही थी कि ये स्टेडियम ये होने वाला है, जमैका में ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा, एंटीगा में ये स्टेडियम बन रहा है, वो स्टेडियम बन रहा है, ऐसे वैसे करके। 2006 में मैं गया था वेस्ट इंडीज इंडिया के टूर पे कवर करने के लिए, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ था। और उस दौरे पर हमें बताया गया, हमें नए नए स्टेडियम में लेके गए। जमैका जो है तोड़ रहे थे, मतलब तैयार कर रहे थे अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए। सबको शंका थी कि क्या स्टेडियम तैयार होंगे या नहीं होंगे। कहीं पे चाइनीज के लोग काम कर रहे थे, कहीं पे इंडियन कंपनीज काम कर रहे थे। तैयारी करने में काफी देरी हुई, सबको परेशानी थी कि क्या होगा या नहीं होगा। आपकी क्या याद है वो सब की? वही लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म कि वेस्ट इंडीज में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कलर एंड एक नया फॉर्मेट भी था। 16 टीम्स थी। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप हैड 16 टीम्स, और 2 नहीं बल्कि 4 ग्रुप्स थे, 4 टीम्स इन ईच ग्रुप, 16 टीम्स इन ऑल। नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो एक देयर वाज दिस ऑप्टिमिज्म एंड द वेस्ट इंडीज वर द लीडर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एट अ point, so they would definitely do a good job. तो ये सब था, लेकिन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज हमारा जो ड्रेसिंग रूम था उस वक्त 2006 especially, it was not a very good place. There was a lot of friction between some senior members of the team, the coach specifically, and some senior members of the team. और उसके कुछ वर्ल्ड कप के कुछ चंद महीने पहले इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी, और हमारे ही सॉइल पे, हमारे ही देश में हम सेमीफाइनल्स भी नहीं पहुंच पाए थे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ शॉक that you are hosting an ICC tournament and you are not even qualifying for the semi-finals. So there were some warning signs, but I think वो एक feeling थी कि नहीं, जब तक वर्ल्ड कप हो जाएगा तब तक सब ठीक हो जाएगा। और आपने बात की सीनियर प्लेयर्स और ग्रेग चैपल जो कोच थे, सीनियर प्लेयर्स में सबसे आगे थे सौरव गांगुली। ज़हीर खान को ड्रॉप किया गया था, वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे। इनफैक्ट जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज़ में थी तब ज़हीर खान उस काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे वुस्टरशायर के लिए, और उन्होंने एक मुकाबले में 9 विकेट निकाला था उधर, और वो फिट होके पूरी तरह से वापस आए खेलने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में थे। फिर साउथ अफ्रीका का एक दौरा हुआ जहाँ पे भारत वनडे सीरीज हार गया था 1-4 से, और इतना बवाल हुआ, पार्लियामेंट में सवाल उठने लगे कि क्या हो रहा है ये वो सब। और उसके बाद सौरव गांगुली वापस आए टेस्ट क्रिकेट में। फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2 वनडे सीरीज हुआ, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, और ऐसा लग रहा था कि ये तो अब बड़े आसानी से इन दोनों को हरा दिया हमने। और सब एकदम चंगासी, सब बढ़िया चल रहा है। और पर हमें ये नहीं पता था
कि जो आपके कोच साहब थे ग्रेग चैपल, उस वक्त वो अपना खुद का भी एक फिल्म कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। गुरु ग्रेग करके एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, करेक्ट। आई मीन दैट वाज, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनको परमिशन कैसे मिली, या उन्होंने परमिशन ली भी नहीं, शायद ली ही नहीं होगी। यू वुड हैव जस्ट, बिकॉज यू कांट बी शूटिंग ड्रेसिंग रूम फुटेज, आई मीन दोज आर एरियाज दैट आर आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। बट एनीवे दैट इट वाज अ टफ टाइम। और अजीब बात यह है कि आप, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट अजीब बात यह है कि वो जब फिल्म कर रहे थे, वो सिलेक्शन मीटिंग के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सुरेश रैना हो टीम में, पर मुझे पता है वो नहीं सेलेक्ट करेंगे उसको। मतलब ये सारी बातें अगर आपका कोच इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री में डाल रहा है तो क्या दर्शाता है? मतलब ये आई थिंक इट वाज बाउंड टू फेल। यस यस, इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि ग्रेग चैपल हैड सर्टेन फेवरेट्स अमंग द मीडिया, और वो मीडिया को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उन चंद लोगों को जो उन्हें लगता था कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको वो एसएमएसेस, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, तो वो एसएमएसेस भेजते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे एसएमएसेस, ये अच्छा क्यों नहीं है, ये बुरा है, व्हाटएवर, दिस पर्सन इज अ फ्यूचर कैप्टन मटीरियल, ऑल दैट स्टफ। और वो जो जर्नलिस्ट थे वो पूरी दुनिया को वो उनके मैसेजेस फॉरवर्ड करते थे। सो इट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम एंड द सीनियर्स वर नॉट हैप्पी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडियन टीम, उस वक्त की इंडियन टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे who are very mild mannered, they generally don't take sides, they like to, you know, they like to sit on the fence, but even today, I mean, it's 15 years now since 2007, 16 years. Even today, अगर आप ग्रेग चैपल का नाम उनके सामने लो तो आप देखेंगे उनके कानों से आपको धुआं आते हुए नजर आएगा. So he had that kind of polarizing effect on the team. It was sad. और ये भी एक कहानी है कि जब वो वर्ल्ड कप के पहले हम श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम वनडे सीरीज खेल रहे थे टू वार्म अप फॉर द वर्ल्ड कप, तो काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स ने बीसीसीआई को जाके रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमें विदाउट अ कोच वेस्ट इंडीज़ भेजिए, हमें ये आदमी नहीं चाहिए टीम में, लेकिन बीसीसीआई ने वो करने से मना कर दिया. और मुझे याद है जिस दिन टीम सेलेक्ट हुआ था, आई थिंक आप बीसीसीआई में थे. मैं नहीं था उस वक्त, मैं नहीं था. तो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुआ था उस दिन मुंबई और बंगाल का रणजी ट्रॉफी फाइनल चल रहा था. करेक्ट. और मेरी दिलचस्पी ये थी देखने में कि क्या ग्रेग चैपल मैच देखने जाते हैं क्या. उससे हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि ग्रेग चैपल वर्ल्ड कप के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्ल्ड कप तक था. करेक्ट. पर वो गए नहीं, सीधे अपने होटल रूम गए वापस. और हमें तब नहीं पता था कि वो फिल्म नहीं, हमें पता था कि वो एक कैमरा क्रू के साथ ट्रैवल कर रहे थे. पूरे 2006 वो ट्रैवल कर रहे थे कैमरा क्रू के साथ. सबको पता था कि वो कैमरा क्रू है, सिवाय बीसीसीआई के. उनको पता नहीं था उसके बारे में और उन्होंने उसको करने दिया. और मुझे याद है वो टीम चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद थी. फिर भी वही बिल्डअप हुआ जैसे 99 में हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2007 में हुआ. कमोपेश वही टीम थी भारत की 2003 वाली. और यहाँ पे एक शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था एक स्पॉन्सर का, वो कभी मैं भूलूंगा नहीं. पर दिलचस्प बात यह कि टीम चली गई. मैंने फिर बीसीसीआई में किसी ने मुझे बोला कि कुछ सामान लेके जाना, क्योंकि मैं जा रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कवर करने के लिए. तो कुछ सामान था टीम का जो मैं लेके गया था अपने साथ वर्ल्ड कप के लिए. वहाँ पे पहुंचे हम मोंटेगो बे, जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होना था. और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सारी के सारे टीम है, दे वर सपोज्ड टू लाइन अप ऑन द बीच फॉर द ओपनिंग सेरेमनी एंड द फोटोज. सडनली मैं देख रहा हूँ कि काफी जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं अपने बरमुडा में. अच्छा. और मैं सोच रहा था ये कौन है, ये लोग सब एक साथ 15-17 लोग बरमुडा पहन के आ रहे हैं. वो बाद में पता चला वो बरमुडा की नेशनल टीम है जो क्वालिफाई करती थी वर्ल्ड कप के लिए. और वो सारे के सारे आ रहे थे बरमुडा पहनकर. वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. और बाद में हमको पता चला कि उनके खिलाड़ियों को भी हम कभी नहीं भूलेंगे. ऑफ कोर्स या ड्वेन लेवरॉक. हाँ. और वो टू ओपनिंग सेरेमनी मोंटेगो बे में रखा गया था, जो जमैका के दूसरे हिस्से में, किंगस्टन में नहीं था. फिर बाद में सब अपनी अपनी जगह पर चले गए और भारत का बेस था ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. हाँ. फिर शुरू हुआ वो दौर जो मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखा. मैंने भी नहीं. इट वॉज वेरी बैड. बांग्लादेश
ने हमें पहले ही मैच में हराया. वी barely, I think we scored only 195 and बहुत ही it was a very ordinary mediocre performance. I think Bangladesh lost only 3 or 4 wickets while chasing the target. बहुत ही easily वो मैच जीते. So you could see that there is something seriously wrong somewhere. Then अगली मैच बर्म्यूडा के अगेंस्ट थी, तो वो तो we were expected to win. तो सब बैट्समैन ने बहुत रन्स बनाए, हमने कुछ 400 रन बनाए बर्म्यूडा के अगेंस्ट, बट नॉट बिफोर रॉबिन उत्तपा वाज स्पेक्टेकुलरली कॉट बाय ड्वेन लेवरॉक ऑफ बर्म्यूडा, पुलिसमैन बाय प्रोफेशन. मैं आपको एक बात बता दूं, ड्वेन लेवरॉक जो बर्म्यूडा पहन के ओपनिंग सेरेमनी में आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने कहा मुझे ये मेरे नाना के लिए चाहिए, और उन्होंने अपना जो बर्म्यूडा वो ओपनिंग सेरेमनी में पहन के आए थे, उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था. तो मैं अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं वर्ल्ड कप से वापस आता, मैंने नाना का देहांत हो गया. अच्छा. तो उनको मैं कभी दे नहीं पाया, मैंने उनके लिए लिया था वो. So you still have it? I still have it with me. पर आप वो वेस्ट साइज देखो ना, पता ही नहीं चलता कहाँ तक जा रहा है वो वेस्ट. करेक्ट. या पर वो जो आपने बांग्लादेश वाली मैच की बात की, आपने मीडिया के डिवीजन की बात की, देवेंद्र, मैं आपको कह सकता हूं कि दैट डे इन द प्रेस बॉक्स आई क्लियरली फेल्ट दैट इट इज अस वर्सेस देम, बिकॉज 2 घड़ों में बढ़ गया था मीडिया. मतलब कोई प्रो ग्रेग चैपल, कोई एंटी ग्रेग चैपल. सौरभ ने 50 मारे थे, जो प्रो ग्रेग चैपल थे कह रहे थे इसने मैच स्लो खेलकर हरा दिया. जो एंटी ग्रेग चैपल थे वो कह रहे थे उसने ही रन बनाए, बाकी किसी ने रन नहीं बनाया. Exactly. मतलब आई हैव नेवर सीन अ मोर डिवाइडेड प्रेस बॉक्स with Indian journalists than at that time. Yeah, I think that was how bad things were at that point of time. 2006 से ही वो सब शुरू हुआ था. So you were either on Saurav's side or Greg Chappell's side, and that was unfortunate for Indian cricket. But yeah, I mean I just look at 2007 as a bad dream. बिल्कुल. और आपने बांग्लादेश भारत की बात की, उसी दिन एक और मैच हुआ था पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में, और उस मैच में हमें पता है क्या हुआ. आयरलैंड ने एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया पाकिस्तान को हरा कर. और पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैच हार चुका था, सो आफ्टर लूजिंग टू आयरलैंड. तो ये दैट अगेन ब्रिंग्स मी बैक टू द फॉर्मेट. तो सब खुश थे, 16 टीम, 4 टीम्स इन ईच ग्रुप. तो ऑन द फेस ऑफ इट लुक फैंटास्टिक कि हर ग्रुप में 2 फुल मेंबर्स होंगे, 2 बड़े टीम्स होंगे. जैसे कि हमारे ग्रुप में इट वाज इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्म्यूडा. तो ठीक है, एक टीम बाकी के 3 टीम्स के साथ खेलेगी और फिर सुपर 8s में क्वालिफाई करेंगे. द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ग्रुप्स विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8. तो ऐसे वो था. किसी ने ये नहीं सोचा ये फॉर्मेट करने से पहले कि अगर किसी बड़ी टीम का कोई बैड डे आ जाए, बैड डे इन द ऑफिस, तो क्या होगा. Unfortunately for the organizers, the ICC, not one but 2 of the biggest draws of the tournament, India and Pakistan, had not one bad day but 2 bad days in the office, and before anybody realized it, both India and Pakistan were out. और उसकी वजह से सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंडियंस ने होटल बुकिंग्स किए थे. मुझे याद है जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप का, तो सुपर 8s के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जिस दिन होना था, तो उसकी चर्चा 6-7 महीने पहले से चल रही थी कि ये दिन इंडिया विल प्ले पाकिस्तान इन अ सुपर 8s मैच एट दिस वेन्यू. ऑल द न्यूज़ चैनल्स वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड सडनली इंडिया भी नहीं और पाकिस्तान भी नहीं. सो वो जो मैच उनके बीच में होने वाली थी, दैट वाज अल्टीमेटली प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड आयरलैंड. एंड आई कैन कंफर्म दैट वो वाला मैच, मतलब मैं था उधर वेन्यू पे, बारबाडोस में हुआ था ये मुकाबला, और आई विल नेवर फॉरगेट दैट पर्टिकुलर मैच, बिकॉज बारबाडोस में, मेरे ख्याल से एंटीगा में, आई थिंक बारबाडोस में हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं आ रहा. पर मैं वो मैच में गया था कवर करने के लिए, और व्हेन वी लैंडेड इन एंटीगा फॉर द सेकेंड राउंड सुपर 8s का, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड नो क्लू अबाउट व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर, बिकॉज द इंडियन टीम वाज बैक. बिकॉज वो जब श्रीलंका से हारे उसके बाद काफ़ी दिनों तक टीम वहीं पर थी, क्योंकि उनको रिटर्न फ्लाइट नहीं मिल रहा था. तो काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने काफ़ी खिलाड़ियों से मुलाकात की तब, और वो सब शॉपिंग के लिए जा रहे थे पोर्ट ऑफ स्पेन में,
सबके पास वक्त था, बहुत था, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप जर्नी तो समाप्त खत्म हो चुका था। तो काफ़ी लोगों से मुलाकात की। जब मैं फिर धीरे धीरे टीम प्लेयर्स वापस जाने लगे, मैं जब एंटीगा पहुंचा तो मैं क्लियरली मेरे ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कंटिन्यू करूं या वापस आ जाऊं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता अगर इंडियन टीम नहीं है। वी आर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इफ द इंडियन टीम इज नॉट देयर इज नो पॉइंट। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप रुक जाओ, पूरा वर्ल्ड कप करके आना। मैंने कहा ठीक है। 2006 में जब मैं गया था, सेकेंड हाफ मतलब जब टेस्ट सीरीज हुआ था, तब फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, सबका नज़र वहीं पर था, नोबडी बॉदर्ड कि क्या हो रहा है टेस्ट सीरीज में। इस बार क्या हुआ, सेकेंड हाफ में वर्ल्ड कप के सब लोग भूल गए क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में, बिकॉज इंडिया टीम वापस जा रहे हैं। और बवाल बॉम्बे में मच रहा था जब रिव्यू हो रहा है, कोच जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की सब थी। मतलब तमाशा हो रहा है बॉम्बे में, सब उसमें हाँ। बिजी हो गए थे। पर मैं आपका ध्यान फिर एक बार पाकिस्तान आयरलैंड वाले बात पे जाना चाहूँ, क्योंकि उस मैच के बाद मतलब रात को, फिर अगले दिन सुबह हमें पता चला कि कुछ हुआ है पाकिस्तान के कोच के साथ, बॉब वुलमर, और उनका देहांत हो गया। और मुझे याद है हम सब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो हमने बताया ग्रेग चैपल को कि वो शायद नहीं रहे दुनिया में। फिर जब कंफर्मेशन आया तो इंस्टेंट रिएक्शन आया। आप भारत में थे उस वक्त, किस तरह का माहौल था उस खबर को लेकर? It was a big shock, you know, that he's dead. Bob Woolmer, the Pakistan coach, was found dead in his room. और पुलिस ने एक स्टेटमेंट कर लिया था that he was murdered, strangulate किया था उनको। फिर उन्होंने वो बयान वापस लिया और कहा कि नहीं, it was a natural death due to a cardiac arrest. So it was a very odd time, you know, ये पता नहीं चल रहा था कि exactly क्या हो रहा है। और पूरी टीम के ऊपर एक सस्पिशन आ गया था पाकिस्तानी टीम। हाँ, क्योंकि पुलिस आई थिंक दे जम्प द गन बाय डिक्लेयरिंग दैट इट इज अ केस ऑफ मर्डर, स्ट्रैंगुलेशन हुआ था, और फिर जाके पूरा बयान बदल दिया। तो ये बहुत ही, एंड आई डोंट थिंक दे हैव गॉट टू द बॉटम ऑफ इट एज येट। और तब ऐसा लग रहा था कि शायद दबाव होगा कि भाई ये वर्ल्ड कप आप आगे कैसे खेल सकते हो, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मतलब there's been a death during the tournament of a coach of a team. Yes. How can you continue with the tournament? There was a lot of talk about it as well at that. Yeah, and there was a lot of controversy because of the fact that ये डेथ हुआ, उसकी वजह से एक मतलब एक साया सा, मतलब काला साया आ गया था टूर्नामेंट के ऊपर। Then the fact that India Pakistan were knocked out, that created another issue because all the people, but you are left with no audience for the other games. Then you are not allowing the locals to get in their machines to make noises. They were not allowed to do their. I think it was a collective disaster. It wasn't very well planned. I think जो local organizing committee थी, that probably did not understand the enormity of having a World Cup. They were a little laid back. तो ICC I'm sure did a fantastic job, क्योंकि 2003 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, and the South African board had of course extended every possible help. But I think West Indies Cricket Board और जो local organizing committee थी, they probably did not do as good a job as the South Africans did in 2003, and indeed India, Bangladesh and Sri Lanka did in 2011, and that the effects were obviously seen. And तब तक ICC had also shifted to Dubai. Yes. By the 2007 World Cup, ICC had shifted baggage to Dubai from Lords, and the second half of the tournament, the tournament, like you said, turned out to be a disaster in that sense, and the fact that West Indies was there in the second half of the tournament, but they first lost to Australia, then they lost to England, and it was not sitting well with the locals as well, because the tournament did not resonate with the locals. Absolutely, they were denied entry into the stadium, and the cricket also. I don't think it was of a very high standard. Most of the matches were one-sided. Australia were clearly,
head and shoulders superior to the others. I remember one match where Lasith Malinga nearly took 4 wickets. No, he took 4 wickets. He took 4 wickets Against South Africa. Against South Africa. South Africa managed to win it by the skin of their teeth. So, apart from that particular moment and Adam Gilchrist's century in the final against Sri Lanka, where he inserted a golf ball into a glove for better control, even my memories of that 2007 World Cup are very hazy, because it was a very tough thing to come to terms with, that your team, India, such a talented team, has not even made it to the second round. Yes, and the West Indies specifically against England when they lost, their captain Brian Lara, he wanted to continue playing, but some issues happened between him and the board, and he decided to retire. Yes, and I was right there when just after he retired, I saw him face to face, because what had happened was the previous year, because we had spent so much time traveling with the Indian and West Indies team, we had become friends and we could see each other, we could talk to each other. And I saw him up close and personal, and he was very distraught after the defeat against England. He retired. And I think that he took a very, like an emotional decision because of the fact that he didn't get along with the board. And, there was no clear line of succession. I think that created an issue as well. He wanted Ram Naresh Sarwan, someone else wanted Chris Gayle. So there was a battle that they fought later after the World Cup. But like you said, Malinga did very well, and he was clearly that Sri Lanka had a very good team under Mahela Jayawardene. And amazingly, just a few months ago, it was Marwan Attapattu who was the captain. He got injured and had to go out, and Mahela was the stand-in captain. But he did so well. So they had to retain him. They retained him. I think Attapattu ended up missing the matches as well. He was the 12th man. He was one of the extras. We used to catch up out near the dressing room, because he had nothing to do. He was just loitering around. And amazingly, and this is something that we should all know about, certain Indian players wanted Tom Moody as India's coach, and Saurav Ganguly wanted Greg Chappell as India's coach. And they rejected Tom Moody. Of course. Tom Moody ended up taking Sri Lanka into the final of the 2007. Of course, So poetic justice. Poetic justice, because in 2005, when John Wright quit and the post of the Indian coach was advertised, there were two main contenders, Greg Chappell and Moody. And as you said, many players wanted Tom Moody, who was younger in terms of age. He was closer. They thought he was more contemporary. He's played the World Cups. He's played both forms of the game. But Saurav Ganguly, who was the captain then, he was very keen on having Greg Chappell. Ironic, but that is the fact. And so we spoke about the Australian juggernaut continuing. Matthew Hayden was in a tremendous form. You had Sean Tate. Glenn McGrath was playing his last tournament as an Australian cricketer. I remember being on a flight with him sitting right next to me. It so happened that I managed to share a seat with the great man, and had a bit of a chat with him as well, and it was quite interesting. And in the second half, Bangladesh also came with a lot of hope in that particular tournament, having beaten India. They came with a lot of hope. And they beat South Africa also. Yes. So in the second half of the tournament, they came with a lot of hope. But it so happened that their coach, Dav Watmore, was more keen to be India coach after the World Cup than look at what was going on at that time. He was more fixated. I think he made it to the NCA, but he did not make it to the Indian team. He came that close. And India A. And India A, yes. So that far he came, and I'll never forget, I clicked a picture of Mushfiqur Rahim and Boyd Rankin together just before the Bangladesh-Ireland game, just to talk about the difference in their heights. I'll never forget that. But you're right, the tournament itself is a blur, except for these few performances by Matthew Hayden and Malinga, like you said, and some other players like Gilchrist in the final. Gilchrist in the final. Now, Sri Lanka beat New Zealand in the semi-final, and the other semi-final, Australia got through quite easily. The final itself, after a long drawn-out tournament, we came to Barbados, the new stadium at Bridgetown, Barbados, and
Did you think that Sri Lanka could upset Australia? Frankly, no, because the way the Australians had been playing, it was extremely hard to even imagine any team disturbing the Australians. So they were on a roll, and I think they had that aura about them that, you know, whatever challenge comes our way, we will easily achieve that. We will circumvent that, and that is how the Australians were. So it was almost like, okay, which is the second best team? The fight for the best team was never there. Everybody knew that ultimately it's going to be Australia, unless something really dramatic happens. ड्रामेटिक से मुझे याद आया, सेमीफाइनल जमैका में हो रहा था, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, एंड आई वाज स्टेइंग राइट बिहाइंड द होटल वेयर मिस्टर बुलमर वाज फाउंड डेड. I happened to go to that hotel, Pegasus. I'll never forget the name of the hotel. And some of the Sri Lankan players were really worried. उनको लग रहा था इसी होटल में हम ठहर रहे हैं. They were really worried. मतलब डर था उनको. मतलब वो उस तरह का नहीं, मतलब उस तरह से बोलते अरे मुझे डर लग रहा है, ऐसे उनको वो डर था. पर वो डर मतलब जैसे जैसे मैच जीतते गए और वो फाइनल में पहुंचे तो वो डर निकल गया. फाइनल के ठीक पहले तो बारबाडोस में जो स्टेडियम है ब्रिज टाउन का, ठीक उसके सामने they had started something called as Cricket Legends of Barbados Incorporated. So it was like a bar and like a place where you could take photos with the legends of Barbados. और आपको पता ही है बारबाडोस से कौन कौन आया है. मतलब आप गेट से बाहर आओ तो लंबे छोड़े वो जो जोएल गार्नर दिखाई देते हैं, गैरी सोबर्स थे, गॉर्डन ग्रीनिंज, डेजमंड हेन्स, ये सारे लोग बारबाडोस के. तो वो जो है वो वहाँ पे आप करीबन $150 के लिए यू कुड क्लिक फोटोज विद द लेजेंड्स इंक्लूडिंग सर गैरी सोबर्स. एंड वहाँ पे एक बार भी बनना था. तो वो ये एक माहौल वहाँ बाहर चल रहा था. मैच के दिन ऐसा लगा मुझे कि आई थिंक बरसात के कारण थोड़ी देरी से शुरू हुई थी, पर जिस तरह से गिलक्रिस्ट ने बल्ला घुमाना शुरू किया और वो इशारा कर रहे थे, तब हमें किसी को नहीं पता था कि क्या इशारा कर रहे थे. क्या लग रहा है आपको वो जो गोल्फ बॉल रख के खेलना अजीब बात थी ना? Yeah, I mean, when you think about it कि गोल्फ बॉल ग्लव के अंदर डाल के बैट पे कंट्रोल कैसे अचीव कर सकते हैं, like it's very hard to imagine, but I think he would have tried it out and then he just went ahead. And Gilchrist, I would say, one of the foremost geniuses that the game of cricket has seen. Somebody who revolutionized a particular role in cricket, because after he came onto the scene, जो एक नज़रिया था दुनिया देखती थी विकेट कीपर्स की तरफ, वो पूरी तरह बदल गया. फ्रॉम बीइंग स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स, एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर बैट्समैन हु कुड ऑल्सो कीप विकेट. आई थिंक गिलक्रिस्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंज इन थॉट. एंड देन लेटर ऑन वी हैड महेंद्र सिंह धोनी, पीपल लाइक हिम. बट गिलक्रिस्ट वॉज अ जीनियस एंड ही जस्ट टुक फुल टोल ऑफ द श्रीलंकन बॉलिंग. और जब चेज हुआ श्रीलंका कभी गेम में था ही नहीं. बिल्कुल. पहले ही रेन शॉर्टन गेम था, फिर टोटल इतना बड़ा हो गया, आस्किंग रेट के दबाव में श्रीलंका कभी गेम में था ही नहीं. बरसात हुई, रुक गया, बैड लाइट हुई, ये हुआ. और एक वक्त के बाद देवेंद्र में हम लोग प्रेस बॉक्स में थे, चल क्या रहा है. मतलब रूल हमें पता था कि 20 ओवर होना तो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफिशियल वनडे मैच. एन मौके पर चारों जो मैच अंपायर्स हैं, मतलब ऑन फील्ड थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर और मैच रेफरी, सबके सब रूल भूल गए. सबके सब रूल भूल गए उन्होंने. मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम ने विक्ट्री सेलिब्रेट की थी, बारिश हुई, एज चंद्रेश सेड कि 20 ओवर हो चुके थे सेकेंड इनिंग्स के, श्रीलंकन इनिंग्स के. सो टेक्निकली द मैच वॉज ओवर, ऑस्ट्रेलिया वर द विनर्स. ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने सेलिब्रेट भी करना शुरू किया था. एंड देन दे वर टोल्ड कि नहीं, आपको एक और कुछ ओवर्स डालने पड़ेंगे. एंड इट वाज क्वाइट फार्सिकल कि कैसे कोई रूल भूल सकता है, और 5-5 लोग, आईसीसी रेफरी और चारों अंपायर्स कैसे रूल भूल सकते हैं. और एंड देन इट वाज अ वेरी फार्सिकल फिनिश वेयर द ऑस्ट्रेलियंस वेंट अप टू द श्रीलंकन बैट्समैन एंड सेड ओके, अभी पूरा अंधेरा हो गया है और हमें कल वापस नहीं आना ये बाकी के ओवर्स डालने के लिए, तो हम आपको ऐसे ही वो जैसे हम प्रैक्टिस सेशंस में थ्रो डाउन्स करते हैं वैसे करेंगे, और आप डिफेंड करो और कुछ भी करके हम ये ओवर्स खत्म कर लेंगे. एंड द श्रीलंकन्स अग्रीड टू दैट. सो इट वाज क्वाइट फार्सिकल फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल टू एंड इन दिस फैशन. और मुझे अभी भी याद है कि मैच के बाद जो मैच रेफरी है जेफ करो, जो 2011 के फाइनल में भी उन्होंने टॉस में गड़बड़ की, और 2007 के फाइनल के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझसे और मेरी पूरी, वो कहते हैं ना, प्लेइंग कंट्रोल टीम से गलती हो गई, हमको रूल याद नहीं था. मतलब मैंने सोचा ये क्या हो रहा है. मतलब इस टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान बाहर चला गया, एक कोच का डेथ हो गया,
और टूर्नामेंट पूरा एक डिजास्टर रहा। और उसके ऊपर आइसिंग ऑफ द केक के तौर पर ये वाली बात होगी जहाँ पे उनको आके माफी मांगना पड़ा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम सब हैरान थे, मुझे याद है हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब उनको रूल याद नहीं था। और जब प्रेजेंटेशन हुआ देवेंद्र, पूरा स्टेडियम अंधेरा था, इट वाज ऑलरेडी द सन हैड गॉन बाय देन। और मतलब मैं फील्ड पे था, क्लोजिंग उसमें उनको क्लोजिंग सेरेमनी भी करना था, और क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त मैंने देखा पूरा अंधेरा। ट्रॉफी दिया, पता नहीं उनको ट्रॉफी ठीक से मिला कि नहीं करके, पर ऑस्ट्रेलियंस ने जमकर जश्न मनाया उस जीत का, मुझे अभी भी याद है। और मैंने जॉन ब्यूकैनन जो उनका कोच था, उनका आखिरी दिन था एज ऑस्ट्रेलिया कोच, आखिरी दिन मैंने उनका इंटरव्यू भी किया जब जीत के बाद। पर उस ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात ही कुछ और थी, बिल्कुल। और मैं अगले दिन मैं वापस गया स्टेडियम, और मेरी तस्वीरें भी हैं, मैं चाहूंगा आप लोग उस तस्वीरों को इस्तेमाल करें। मैं स्टेडियम गया और जहाँ पे गिलक्रिस्ट ने मारा तो मैंने थोड़ा उनकी तरह स्टाइल में और जहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम था वहाँ पे बैठकर भी एक तस्वीर खींचा, और मैंने कहा आज मैं तृप्त हो गया। ये एक फायदा हुआ मतलब उस जगह जाने का, पर वो एक टूर्नामेंट भूलने लायक टूर्नामेंट था। और दूसरे दिन आपने जिक्र किया, दूसरे दिन का तो एक और बड़ा डिजास्टर हुआ। मतलब एवरीथिंग अबाउट दैट वर्ल्ड कप वाज सो डिजास्टर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो माल्कम स्पीड जो कि आईसीसी के सीईओ थे, वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे जस्ट टू एक्सप्लेन टू द मीडिया व्हाट वेंट रॉन्ग, बिकॉज जेफ क्रो द मैच रेफरी ही अपोलोजाइज द प्रीवियस डे, द मैच डे। बट उसके दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई विद माल्कम स्पीड, द सीईओ ऑफ द आईसीसी, एक्सप्लेनिंग एंड अपोलोजाइजिंग फॉर द गूफ अप। और जब वो बात कर रहे थे तो पीछे का एक बैकड्रॉप था आईसीसी का, वो जाके माल्कम स्पीड के सर के ऊपर गिरा लाइव। सो इट वाज अ टोटल डिजास्टर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और फाइनल से ठीक पहले एक दिन पहले वो एक ट्रॉफी के साथ फोटो होता है ना, तो वो हो रहा था बारबाडोस में, जिस होटल में दोनों टीमें ठहरी थी, उस होटल के ठीक पीछे एक बीच था। उस बीच पे होना था रिकी पॉन्टिंग और महिला जयवर्धने। तो सारे मीडिया को बुलाया गया था, हम पहुंच गए वहां पे, ट्रॉफी लगा हुआ है, मेरी तस्वीर है ट्रॉफी के साथ, मतलब इतना वक्त था, ट्रॉफी के साथ तस्वीर लिया। फिर उन्होंने कहा बस 5 मिनट, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग आ गए, बोला अभी महिला, बोल रहे आ रहे, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। मतलब आई थिंक हम सब ने मिलकर करीबन 1.5-2 घंटा महिला जयवर्धने का इंतजार किया कि वो अभी आएंगे ट्रॉफी के साथ तस्वीर लेने के लिए। पता चला उनको ये नहीं पता था कि ट्रॉफी के साथ तस्वीर लेना है, वो चले गए थे शॉपिंग करने। ओह माय गॉड। तो 1.5-2 घंटा सब लोग इंतजार, मतलब जितने लोग थे उधर उन सब ने फोटो ले लिया। उसके आप सोचे तो इतना वक्त था आपके पास, तो मतलब आप कह सकते हो कि उस टूर्नामेंट का स्क्रिप्ट पता नहीं कौन लिख रहा था। Absolutely, it was a disaster, and I think the lesser said about it, the better. और उसके बाद जब वो जीते, अगले दिन तस्वीर हो रहा था विद द ट्रॉफी एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल वगैरह। मुझे अभी भी याद है वो लोग सब बीच पर थे, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा और आई थिंक मैथ्यू एडन या गिलक्रिस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा। और मिचेल जॉनसन, एंड्रू साइमंड्स और एक खिलाड़ी, वो लोग ऊपर से टेरेस से उनको रैक कर रहे थे। जब वो पोस्ट करने को बोल रहे थे तो ऊपर से उनको रैक कर रहे थे। ये सब यादें मुझे अभी भी मेरे जहन में अभी भी साफ नजर आते हैं। बट वो टीम बात ही कुछ और थी, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात ही कुछ और थी। और उस टीम में आई थिंक ब्रेट ली नहीं थे, आई थिंक ही वाज इंजर्ड। तो और कुछ महीने और 4 साल से शेन वॉर्न भी वनडे टीम में नहीं थे। तो अब सोचे कि 2003 में शेन वॉर्न नहीं थे, 2007 में ब्रेट ली नहीं थे, फिर भी अगेन like as we said last time that the strength of a team is measured in terms of its bench strength. तो जो रिप्लेसमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ही, they were great cricketers in their own right. और किसी को ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार होगा 8 साल तक कि वो जश्न मनाएंगे एक वनडे विश्व चैंपियन बनने के बाद। ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे लग रहा था उस वक्त के उनके जो नए प्लेयर्स हैं वो भी इतने अच्छे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द ऑस्ट्रेलियंस। बट यस, धोनी एंड कंपनी डिड इट इन 2011। बिल्कुल, और उस सब के बारे में तो हमने बहुत विस्तार में बात कर लिया है, पर आज के लिए बस इतना ही। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ इसी तरह बने रहे, ये पॉडकास्ट सीरीज चलता रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।